Kindly like this video, subscribe to my channel Canny's World, and press the bell icon for further updates in the future. During the Great Depression, which I'm old enough to remember, there was, and most of my family were unemployed working class, it was bad. But there was an expectation that things were going to get better. There isn't today. Noam Chomsky has made 2 international reputations. The most important intellectual alive, America's leading dissenter. He is listed in anybody's catalog as among the top heroes of the New Left. He is among the 8 most quoted thinkers ever. Inequality is really unprecedented. It's like the worst periods of American history. The effect of the concentration of wealth is to yield concentration of power. Not only is it extremely unjust in itself, inequality has highly negative consequences on the society as a whole, because the very fact of inequality has a corrosive, harmful effect on democracy. This is a result of over 30 years of a shift in social and economic policy, completely against the will of the population. It goes back to the founding of the country. If you read the debates at the Constitutional Convention, James Madison, the main framer, said the major concern of the society has to be to protect the minority of the opulent against the majority. If you look at the history of the United States, it's a constant struggle between these 2 tendencies. Pressure for more freedom and democracy coming from below, and efforts at elite control and domination coming from above. You opened by talking about the American dream. Part of the American dream is class mobility. You're born poor, you work hard, you get rich. It's all collapsed. What they are creating is it's solely for the West. So their narrative is all about pleasing the West and America. So what I'm saying is that their literature is compromised. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ट्रांसलेशंस हैं और ये ट्रांसलेशंस जो हैं जो हमारे उर्दू लिटरेचर के टॉप ऑफ द लाइन नॉवेल्स की या ड्रामों की हैं, अब देखिए मैंने आपके पीएचडी के प्रोग्राम के अंदर क्या किया है कि पीएचडी के प्रोग्राम में मैंने एक ऑथर है तनवीर हबीब जो है ये बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हैं. यानी यूं समझिए कि इंडिया की तारीख के अंदर सब कॉन्टिनेंट की तारीख में जो चंद बड़े नाम पैदा किए हैं एज ए ड्रामाटिस्ट उनमें से एक है. उनकी किताबें मेरे हाथ लगी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई हैं, यानी उनके ड्रामे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुके हैं. तो मैंने क्या किया कि मैंने आपका जो फाइनल आपका टर्म पेपर रखा है वो रखा ही जो है वो तनवीर हबीब के ऊपर है. तो और फिर उसके साथ मेरे पास कुछ रिसर्च आई है, और ये बात मैं फरोख हमीद के लिए से शेयर कर रहा हूँ. मेरे पास कुछ रिसर्च आई है जो बड़ी रेयर है. वो रिसर्च ये है कि जो हमारे उर्दू के हमारे प्लेज हैं और ख़ास तौर पे अर्ली प्लेज हैं, यानी प्री पार्टीशन के जो प्लेज हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा काम जो है ना वो एक मॉस्को की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मॉस्को यूनिवर्सिटी की, अब जो इंटरकल्चरल स्टडीज़ के अंदर और लिटरेचर के अंदर. तो उन्होंने क्या किया कि वो पाकिस्तान आई और इंडिया आई, उन्होंने यहाँ पर रिसर्च की और वो उर्दू के जो लिटरेचर है, उर्दू का जो ड्रामा है, उसके ऊपर काम किया. तो ये फ़र्क देखेंगे कि वो डायमेंशंस जो हम ढूंढ रहे हैं, वो डायमेंशंस पे अब नया काम हो रहा है. तो दिस इज अमेजिंग कि हम उस चीज़ पे उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल कॉन्टेम्परेरी है. और मैं आपको एक और बात बताऊं
बात ये है कि जब ये पीएचडी का सिलेबस मैं चीज़ें डिज़ाइन कर रहा था, तो मेरे ज़हन में ये बहुत ज़्यादा चीज़ थी कि इसका सिलेबस ऐसा बनाया जाए कि इसको पढ़ने के बाद आपके लिए किसी किस्म की रिसर्च थीसिस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये बात मैं मलिक साहब आपसे भी कर रहा हूँ कि एवेन्यूज खोले जाएं। हाँ जी, बिल्कुल। और एवेन्यूज इस तरह के खोले जाएं कि ताकि वो आपको जो काम कर रहे हो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जी। और हमारा जो फोकस है वो यही है कि टू एक्सप्लोर द टेक्स्ट फॉर ऑल फ्यूचर रिसर्चेस. So now, I would like to discuss that today I have 2 lectures, and Yes, sir. the first lecture will be on American literature modernism, the lecture number 3, and the 4th lecture will be on A View from the Bridge by Arthur Miller. Acha, why I've selected Arthur Miller, because Arthur Miller is a representative of that time, the modern era, and his writing reflects the ideas of that time. और ये मैं प्रूव करूंगा, ये बातें नहीं है सिर्फ, ये बातें नहीं होंगी, बल्कि ये क्या होगा कि मैं आई वुड लाइक टू प्रूव इट, क्योंकि असल बात तो ये है ना. दूसरी बात ये कि what we'll do is today I will when I'll explain the thematic concerns of the play and the plot of the play, the little story about it, and what are the key areas we should explore in that play. और जब ये मेरी आज आपके साथ गुफ्तगू हो रही होगी तो मैंने 2 चीजें और की हैं. वो ये की है, एक तो मैंने ये की है कि आई हैव डेवलप ए स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप. कुछ चीजें जो है मैंने सिंगुलर कर दी हैं, कुछ चीजों को मैंने 2 लोगों पे मुश्तमिल कर दिया है. और वो क्या है, वो ये कि जो प्ले है अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, जब इसको, क्योंकि अब तो ये डिबेट खुलेगी. Now it's open for, today, from today on, it will be open for debate. So what I'll do is that I have special form the groups for you guys. अच्छा, इसमें मैंने मिसाल के तौर पे मलिक हसन रजा के लिए पहला एक्ट निकाला है, उसकी कमेंट्री निकाली है. मैंने फरूख हमीद के लिए उसकी जो स्टेज है, डिजाइनिंग है. अच्छा, इसको हम कहते हैं स्टेज टेक्नोलॉजी. What stage technology is about? It's about setting up of the stage, the lighting design of the stage, the costumes of the stage. So that area I've dedicated to Farooq Hamid to discuss. Yes. Thank you, sir. And you're always welcome. And then to start up the play, I've put Aklimia as a head. She will discuss the plot and the historical and social context of the play, and then she will move towards the basic philosophy behind the play, And the second one with the let me tell you what I have done. Second act is like Kamran and Aqsa. I'd request Kamran to contact Aqsa because she won't be here today because she's ill right now. So I would like you to Kamran to contact her also, and because I've already formed a group of her with you. Then with themes, I have put Awais on it, and then finally. I would like to conclude with Farooq. And Farooq, I would like you to also add pictures to your presentation. For example, when you say stage, it means that you should, exhibit the pictures. तो ये क्या है, ये वो है, और ये ग्रेडेड है, ये तमाम ये ग्रेडेड है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए पार्टिसिपेशन की बड़ी वर्थ है. और जो स्कॉलरशिप है पीएचडी लेवल पर, स्कॉलरशिप है, वो डेवलप ही नहीं हो सकती. उसको डेवलप करने का सिर्फ एक ही तरीका ये कि हम सब मिल जाएं और मिल के जो है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें और नई चीजें लेकर आए, नई इसकी जो है ना वो डायमेंशंस को जो है वो एक्सप्लोर करें. अच्छा, अब मैं आना चाहता हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं.
अब आपको लोगों को नजर आ रहा है? स्क्रीन नजर आ रही होगी आप लोगों को? जी जरा म्यूट कर दीजिएगा। मैं मलिक साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको स्क्रीन नजर आ रही है सही तरीके से? जी सर आ रही है। और मेरी आवाज आपको बिल्कुल सही आ रही है? सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। बहुत अच्छा जी, मैं दोबारा चंद पॉइंट्स को हाईलाइट दोबारा करना चाहता हूँ, और मैं चाहता ही हूँ कि उन जो पॉइंट्स को हमने, ताकि हम एक रीकैप करें हल्का सा, और वो रीकैप करते हुए वी शुड मूव ऑन। एंड वो जो रीकैप है उसके अंदर एक बहुत बड़ी अहम चीज है, वो हिस्ट्री एंड कल्चर है। अच्छा, मैंने एक चीज के ऊपर आप लोगों से, जब मेरी गुफ्तगू का आगाज हुआ, then at that time I highlighted the new historicism। और वो न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है? वो है हिस्ट्री और कल्चर की स्टडी। हिस्ट्री और कल्चर की स्टडी का मतलब क्या है? हिस्ट्री और कल्चर की स्टडी का मतलब ये है कि हम उस हिस्ट्री के ऊपर एक दायरा बनाएं, उस कल्चर के ऊपर एक दायरा बनाएं, यानी वी शुड फॉर्म ए बाउंड्री ऑन इट एंड देन वी विल से दैट we will study the history according to the literary and non-literary text of that time। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ही चाहता हूँ कि अगर लेट्स से कि मैंने ऑर्थर मिलर को स्टडी करना है, तो मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि मैं लॉर्का को भी स्टडी करूं। अगर मैं लॉर्का को स्टडी कर रहा हूं, मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि मैं जॉनरा चेंज करूं और जॉन स्टाइनबेक को भी स्टडी करूं। अच्छा, जब मैं ये चीजें स्टडी कर रहा हूं, तो मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि मैं ओनील को भी स्टडी करूं। और अगर मैं ओनील को स्टडी कर रहा हूं, तो मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि मैं टेनेसी विलियम्स को भी स्टडी करूं। ये तो मेरा लिटरेरी सर्कल है। यानी इन अदर वर्ड्स, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं उस तरह के राइटर्स ढूंढ रहा हूं, और बिजनेस की लैंग्वेज हम कहते हैं बेंचमार्क करना। बेंचमार्क करने का मतलब ये होता है कि आप अपने कंपेटिटर्स और को स्टडी करते हैं, और आप क्या करते हैं कि उनको बेंचमार्क करते हैं। उसी तरह आप क्या करते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म में क्या करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये 1980s के बाद जो है ये रेवोल्यूशनरी तरीका है टू स्टडी दी टेक्स्ट। ठीक है, एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर यू शुड नो दैट। अब जब हम इन हिस्ट्री में जाते हैं, और हिस्ट्री जो है वो दो तरह की होती है। एक हिस्ट्री है जो लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक जो हिस्ट्री है जो जिसको हिस्टोरिकल बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ ये जो डिवीजन है कि एक चीज हिस्ट्री से एक स्टोरीज आ रही हैं जिनको हम फिक्शन नहीं कह रहे, बल्कि हम क्या कह रहे हैं, फैक्ट कह रहे हैं। हम उनको फॉर्मल बुक्स कह रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि यार ये बुक्स हैं, ये फिक्शन नॉन फिक्शन है। यानी हमने उनके अंदर एक डिवीजन पैदा की हुई। न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है ये डिवीजन गलत है, इसलिए कि हिस्ट्री जो है, अगर वो भी एक नैरेटिव बयान कर रही है, और जो लिटरेचर है वो भी एक हिस्ट्री को बयान कर रहा है। अच्छा, लिटरेचर भी एक कल्चर पेश कर रहा है, और हिस्ट्री की बुक्स भी एक खास कल्चर को प्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब अगर आप इस कल्चर की दुनिया में आते हैं, तो कल्चर जो है उस सोसाइटी का, उस लम्हे का पहलू है। मिसाल के तौर पर कामरान को मैं इस डिबेट में लाना चाहता हूं। कामरान, आप काइंडली जरा बताइए कि जब आपने दी वेरी जनरेशन पढ़ा, दी वेरी जनरेशन इज रिटन बाय अब्दुल्ला हुसैन, और अब्दुल्ला हुसैन जो है वो एक नैरेटिव बयान कर रहे हैं टू नेशन थ्योरी के ऊपर, और वो एक ऑल्टरनेटिव जो है वो नैरेटिव है, यानी मुतबादिल बयानी है। सो कामरान, can you highlight, that what kind of history and culture is represented by the modern text, the very generation? जी कामरान। थैंक यू सर। उसमें यह था कि वेरी जनरेशन में अब्दुल्ला हुसैन ने उन एस्पेक्ट को डिस्क्लोज किया या रिवील किया कि जो उस वक्त के कंटेम्परेरी इश्यूज थे, उनमें जैसे वो एक तो वेल फेमस है उसका सांझा पंजाब था फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसकी वो जो उनका, और दूसरा था उसका टू नेशन थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट था। तो टू नेशन, कुछ लोग थे जो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते थे, और कुछ ऐसे थे जो उसको जाके उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव लेके आते थे, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम भी थे इस तरह के,
और ये जो थे इंतज़ार हुसैन थे, वेरी जनरेशन के अब्दुल्ला हुसैन थे, और सनलाइट के अतिया हुसैन, इस तरह के जो इस लाइन के थे वो इसको अपोज करते थे। और वो सिर्फ वो जो उन अब्दुल्ला हुसैन ने तो इवन ये कहा था कि मुझे ये मतलब नहीं है कि ये पाकिस्तान की पार्टीशन हुई या नहीं हुई। वो कहता था कि वो कंसर्न करता था लोगों की कंडीशंस को, लोगों के सोशल इंटरेक्शन को, कि उनका सोशल इंटरेक्शन कैसा हुआ है, वो ब्रेकअप हुआ है नहीं हुआ, और उसमें कितनी यूनिटी आई है और कितनी स्ट्रेंथ है, और उनसे उनकी अफेक्टिव हुए हैं, उनकी जिंदगियां कितनी मुतासर हुई हैं। तो इस तरह का सिनेरियो था उस वेरी जनरेशन में। और उसके साथ साथ वो कंडीशंस थी जो वर्ल्ड वार 2 के बाद की थी, और वर्ल्ड वार उसने स्टार्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके 1960 तक में भी, और उसमें सारी कंडीशन उसकी हिस्टोरिकली, उसकी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, उसने हर चीज को अलग इलुस्ट्रेट किया था। तो इसमें एक और एस्पेक्ट आ जाता है सर उसके कि पार्टीशन के बाद जो कंडीशन थी, जो पाकिस्तान के हालात थे, सिचुएशन थी, इकोनॉमिकली उसके ड्रॉबैक्स थे, और पॉलिटिकली और सोशली लोग कितने डिस्टर्ब हुए थे, और उनमें बड़े सोशल उसमें वॉइसेस आ गई थी, जैसे वो चाइल्ड लेबर था, जैसे वो थी रेप विद वुमेन और अबडक्शन ऑफ वीमेन था। इस तरह के वो सारे एस्पेक्ट भी उसने अब वेरी जनरेशन में हाईलाइट किए हैं। जिस तरह खुदा की बस्ती है, शौकत सिद्दीकी का, उसने भी उसको चाइल्ड लेबर इशू को और इसके रेप अबडक्शन को, और इकोनॉमिकली जो इन्फ्लुएंस हुआ था, इकोनॉमिकली डेवस्टेशन हुई थी लोगों की, उनको लिविंग का स्टाइल, हर चीज उसने उसको जाके। तो इसका मतलब ये कि इसका मतलब कामरान ये कि अगर मैं कहूं कि द वेरी जनरेशन बाय अब्दुल्ला हुसैन इज अ टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, यू एग्री विद दैट? यस। तो इसी तरह यही आर्गुमेंट जो है, आई रियली अप्रिशिएट कामरान फॉर पुटिंग, आई मीन गिविंग सच अ गुड आर्गुमेंट एंड विद इलस्ट्रेशंस. Now, if you look at, I mean, the modern times in America, you will see that a big event called the stock market crash. अच्छा देखिए, एक बूम पीरियड है, और वो बूम पीरियड क्या हो रहा है मलिक साहब, कि वो बूम पीरियड खत्म हो रहा है, और वो खत्म कैसे हो रहा है कि एक स्टॉक मार्केट का मार्केट क्रैश पैदा हो रहा है क्योंकि गलत एक्सपेक्टेशन सेट हो रही है. अच्छा, वो जो एक्सपेक्टेशन है वो कैपिटलिस्ट एक्सपेक्टेशन है. मैंने पहले भी थोड़ा सा कैपिटलिज्म के बारे में बताया था कि कैपिटलिज्म की जो है ना वो 3 चीजें बड़ी अहमियत की हामिल है. नंबर 1, और इट्स फ्रॉम द इकोनॉमिक्स. नंबर 1 is that it's about market relationship. It's about is that market determines the price. यानी स्टेट प्राइस को डिटरमिन नहीं कर रही, बल्कि कौन, मार्केट फोर्सेस जो हैं वो प्राइस को, चीजों की प्राइस को डिटरमिन कर रहे हैं. एक. अच्छा, अब जो उसके अंदर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि लाजमी नहीं है कि वो प्राइसेस चीजों की हों, वो इंसानों की प्राइसेस भी होती है. इंसान भी जो है वो उनकी भी कीमत लगाई जा सकती है. कैपिटलिज्म में इंसान बिक जाता है, इंसान को खरीदा जा सकता है. ठीक है. और नंबर 1. नंबर 2 ये है कि चीजें जो है वो स्टेट ओन नहीं होती, बल्कि वो प्राइवेट ओन है, यानी इंडिविजुअलिज्म है उसके अंदर. और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि उसके पीछे एक ग्रीड है. ग्रीड जो है वो क्या है? वो ग्रीड एक बड़ी उसकी अहमियत क्या है? उसकी अहमियत ये है कि जो ग्रीड है वो ये कहता है कि आपको जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही हो वो आपको ले लेनी चाहिए. यानी इन अदर वर्ड आप अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं. अच्छा, अब ये तमाम ट्रेंड्स, ये जो बातें मैं कर रहा हूं आपसे, ये बातें मैं प्रूव करूंगा जब हम पढ़ रहे होंगे टेक्स्ट, व्यू फ्रॉम द ब्रिज. ठीक है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, मार्केट क्रैश है, इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन. जी प्लीज. आपकी बात, सॉरी काट रहा हूं. नहीं, मलिक साहब आप कंट्रीब्यूट करें. इस पे मौलाना मौदूदी की एक बिल्कुल छोटी सी किताब है कि इस्लाम और उसके मुआशी नजरियात. अच्छा ना? जी मलिक साहब. तो उस पे उन्होंने वो बड़ी ये चीजें बयान की हैं कि अगर एक कैपिटलिस्ट को जी मलिक साहब.
I think we lost Malik Saab. I'll keep moving, and then whenever Malik Saab. मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही, अब आवाज आ रही जी सर, मौलाना मदूदी का कह रहा हूँ, उनकी बुक है इस्लाम और उसके मुआशी नजरियात, तो उसमें कहते हैं कि कैपिटलिस्ट जो है, अगर उसको सरमायादार को नजर आ रहा है कि शराब की फैक्ट्री लगाने में मुनाफा है, तो वो साफ पानी की फैक्ट्री कभी नहीं लगाएगा, बेशक वहां की जरूरत साफ पानी ही क्यों ना हो। देखिए, और ये क्या है, देखिए जो कैपिटलिज्म की जन्नत है ना, जो ईडन ऑफ कैपिटलिज्म है, वो इट लाइज इन अमेरिका इसका एक बहुत बड़ा की प्लेयर है, ठीक है, दुनिया के अंदर। और ये जो अमेरिकन ड्रीम है, देखिए, लेट मी से दिस, अमेरिकन ड्रीम इज अबाउट कैपिटलिज्म, इट्स अबाउट कैपिटलिस्ट फिलॉसफी। क्योंकि कैपिटलिस्ट फिलॉसफी में एक और नजरिए को भी बड़ा प्रमोट किया जाता है, वो ये नजरिया ये कि इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव एनीथिंग। In other words, they're telling you that, they can abuse you in the name of hard work. They will say that, you will get promotion, you will get benefits. So let's work hard. So what happened is that, you can lose dignity of humanity in that. So what I'm saying is that capitalism is the main and key component of American dream. 30s में यानी सिचुएशन ये पैदा हो गई कि 1/3 ऑफ ऑल अमेरिकन वर आउट ऑफ वर्क। अच्छा, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी वहां पर क्या होगा? वहां पर एक खास किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। जब पाकिस्तान बना तो उसके जो पहले 10 साल हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं वो माइंड ब्लोइंग है। वो माइंड ब्लोइंग इसलिए है कि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो पाकिस्तान ने लिया। इससे सिमिलरली 1930s में अमेरिकन जो है वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो है वो जॉब्स उनकी खत्म हो गई। अब जब जॉब खत्म हुई तो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए, जिसमें क्या था, सूप किचन था, शांति टाउन्स थे, अच्छा, आर्मी ऑफ हबोस कहते हैं वो लोग जो क्या हो, जो कि बेरोजगार हो और वो मारे फिरते हो, यानी होमलेसनेस, इनके पास होम ही नहीं है। और ये बेघरी जो है, और आप इससे ज्यादा करें कि अगर ये मुल्क इतना अमीर मुल्क हो, दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर मुल्क हो, और वहां पर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो वो उसको हैंडल ही ना कर पाए। क्यों इसलिए ना हैंडल कर पाए कि उसके पास जो सिस्टम्स हैं वो क्या है, वो इंडिविजुअलिस्टिक के लिए है। यानी वो कहना चाहते हैं कि भाई हमें क्या, आप सर्वाइव करो, जिसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म वो क्या है, वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन तमाम चीजों को देखिए, इनमें क्या है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जो बच जाएगा, जो चाहे वो बचे चालाकी के साथ, चाहे वो बचे हार्डवर्क के साथ, लेकिन वो बचेगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, पेंडेमिक में भी आप देख लीजिए कि एक हमारे यहाँ एक हर्ड इम्यूनिटी का भी कॉन्सेप्ट आया हुआ कि जो ये आया है, स्टेट का काम नहीं बचाना, जो बच जाए ठीक है, जो लगा जाए वो लगा जाए। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये है एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट की इकोनॉमी नहीं खराब होनी चाहिए, चाहे बंदे मरते हैं तो मरे। दिस इज द विजन ऑफ एक्चुअली द कैपिटलिज्म। अच्छा, अब होता क्या है कि जब मुश्किल हालात आते हैं ना, तो लिटरेचर बड़ा पनपता है। ये एक लिटरेचर की ताकत है कि लिटरेचर जो है वो क्या करता है कि वो अपने आप को री इन्वेंट करता है, क्योंकि उसके पास मसाइल आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं। और हमें तो देखा है कि इश्यूज के बगैर लिटरेचर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। यानी लिटरेचर आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं चलता, बल्कि आर्ट फॉर लाइफ सेक है, या आर्ट फॉर चेंज है। ठीक है, और ये वो जमाना है जब टॉल्स्टॉय लिख रहा है। ठीक है, और ये वो जमाना है जब कि इस जमाने में हम देखते हैं कि जो नॉवेल है मदर, वो आया है। ठीक है, उसने एक चेंज लेकर आई है। ठीक है, तो लोग ये सोचने मजबूर हुए हैं कि आर्टिस्ट ये सोचने मजबूर हुए हैं कि मे बी हमें अपनी रूट्स और अपने कल्चर को दोबारा से स्टडी करने की जरूरत है। अच्छा, अब मैंने आपके साथ ना एक वीडियो शेयर की। डॉक्टर आसिर अजमल हमारे डीन भी हैं, इंतहाई काबिल स्कॉलर हैं, जाती कैपेसिटी में मैं समझता हूँ ये बात। उन्होंने इंटरव्यू किया जो मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर की। आप वो इंटरव्यू देखें तो आपको ये पता चलता है कि आज के अमेरिका में भी वही इश्यूज हैं कैपिटलिस्ट के,
कैपिटलिज्म के, और वही इश्यूज हैं जो कि एफ्रो अमेरिकन, मैं देखिए मैं तो ब्लैक अमेरिकन नहीं कहता क्योंकि मुझे पता है कि ये तकलीफ दे लफ्ज़ है, इट्स नॉट एन ईजी वर्ड टू यूज। और क्योंकि जो वहाँ के जो जब मैं अमेरिका को, मेरा एक बहुत बैकग्राउंड है जो अमेरिका के साथ, मैं 8 साल अमेरिका रहा हूँ और मेरी अमेरिका के साथ बड़ी बड़ी यादें हैं, बड़ी मोहब्बत है मेरी अमेरिका के साथ। तो जो अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं वो खुद को एफ्रो अमेरिकन कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक शख्स की आइडेंटिटी वो होनी चाहिए जो वो खुद कहता है, ताकि उसको उन अल्फाज से पुकारा जाए। तो आई कॉल देम एफ्रो अमेरिकन। अच्छा, जो एफ्रो अमेरिकन हैं उन्होंने सोचा कि यार बात ये कि हमें ना ये डिफाइन नहीं कर सकते, वाइट अमेरिकन शुड डिफाइन अस, मैटर ऑफ फैक्ट वी शुड डिफाइन आवरसेल्फ, matter of fact we should go to our roots, we should go and search for our music, our literature, our culture, our history, and search for it and come up with something new and come up with something dynamic. And actually what they did was wonderful. They searched for their roots, and I have already included some text from Afro-American background. One of the texts which I have included is The Color Purple. Matter of fact, in that literary text, I would like to use a movie also in it, because the movie got the Oscar award, while the text got the Nobel Prize. So what I'm saying is, they research them, and they come up with their own ideas, and they call it the Harlem Renaissance. New York जाएं आप, I lived there for a while, और न्यूयॉर्क के अंदर जो है आपको वो जगह नजर आती जो हार्लम है, और जहां पर ये रेनेसांस आई, यानी कहने मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर वर्क, देयर नॉलेज अबाउट देमसेल्फ। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, बात ये कि लिटरेचर की एक और खूबी भी है कि वो आपको अपने हिस्ट्री से और अपने कल्चर से को रिविजिट करने में मजबूर करता है, आपको अपने कल्चर और हिस्ट्री को रिविजिट करने में मजबूर करता है कल्चर। और वो कौमें जो अपने कल्चर और अपनी हिस्ट्री को रिविजिट नहीं करते, वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती। कौमों की तरक्की करने के लिए बड़ा जरूरी है कि अपने आप को रिविजिट करें, अपनी अच्छी चीजों को भी देखें, अपनी बुरी चीजों को भी देखें, लेकिन अपने आप को खुद डिस्कवर करें, अडेप्ट करें। ये जो हार्लम रेनेसांस है, ये क्या एडेप्टेशन है? एडेप्टेशन इस सेंस में है कि उन्होंने अपने अफ्रीकन रूट्स को स्टडी किया, अपनी जैज म्यूजिक को, अपना नया म्यूजिक क्रिएट किया। देखिए क्या बात है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप अपना नया म्यूजिक क्रिएट करें, आप अपनी चीजों को नए तरह से डेवलप करें, और उसके अंदर जो है क्लॉड है, फिर उसके बाद कॉन्टे है, फिर WEB है, जोरा है। I mean, these are phenomenal writers, and I would like you to, at least read about one of the writers among them, so you understand that what's going on at that time. अच्छा देखिए, इस अमेरिकन लिटरेचर के अंदर जो है वो 3 की प्लेयर्स हमारे सामने आते हैं, जिसमें से 2 को मैं साथ लेके चलना चाह रहा हूं। और नंबर 1 जो है वो है आर्थर मिलर, नीचे से, और आई वुड लाइक टू see the origin, energy and scope of Arthur Miller drama. That's my goal. Arthur Miller है, Arthur Miller के बाद जॉन स्टाइनबैक है। जॉन स्टाइनबैक की द ग्रेव्स ऑफ रैथ जो है वो बिल्कुल वैसी ही, उसको वही मुकाम हासिल है उस टेक्स्ट को, जो मुकाम जो है उदास नस्लें को हमारे लिटरेचर के अंदर हासिल है। और द गॉड अननोन जो है मैंने इसके अंदर ऐड की है टेक्स्ट, मैं नई टेक्स्ट लेकर आया हूँ, ताकि क्योंकि बहुत से कुछ लोग, आप में से वो लोग जो मॉडर्न लिटरेचर के अंदर PhD करना चाहते हैं, और उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो इन चीजों को लेके चले। अच्छा, दिलचस्प बात आप इन तीनों राइटर्स की देखें, और इन तीनों राइटर्स में जो
में जो कॉमन बात है वो ये भी है कि ये तीनों राइटर्स ना ग्रीक ट्रेजेडी से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। यानी ये जो है ये ग्रीक ट्रेजेडी को लेके चल रहे हैं। और ये भी मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि जो ग्रीक ट्रेजेडी है वो क्या चीज़ है। आर्थर मिलर क्या कहता है? आर्थर मिलर ने अपने प्ले अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज को कहा है कि ये एक जस्ट लाइक ए ग्रीक ट्रेजेडी। तो वो कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है? Why he is connecting himself with Greeks and what type of connection he has with them, and why he's calling his tragedy of and Greek tragedy and bracket them as one. After 2,500 years ago, he's coming up with this idea. Whether he's impressed with O'Neill, because O'Neill is bringing the Greek element in his place, or he's impressed with the Tennessee Williams, a streetcar named Desire, or maybe he's impressed with them, or maybe he's coming up with his own influence, and he's searching for his own place. So Arthur Miller work is very significant, बहुत significant है। और मैं चाहता ये हूँ कि उसकी सिग्निफिकेंस को हम मजीद एक्सप्लोर करें और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें। उसके बाद एक चीज है, और वो जो अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज के अंदर, स्ट्रीट कार नेम डिजायर के अंदर, ओनील के तो तकरीबन हर प्ले के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है वो नजर आ रहा है, वो अमेरिकन ड्रीम का। और अमेरिकन ड्रीम जो है, अगर आप वो ट्रम्प की स्पीचेस में भी देखें तो वो अमेरिकन ड्रीम है। आप ओबामा की स्पीचेस में देखें तो वो भी जो है वो अमेरिकन ड्रीम है। उसके बाद अगर आप जो है टॉमस जेफरसन की जो उन्होंने जो लिखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा अमेरिका का, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिखा तो उसमें भी उसकी जो रूह है वो कहते हैं कि जी वो अमेरिकन ड्रीम है। सो दिस इज बिकॉज अमेरिका जो है वो एक ऐसा मुल्क है दुनिया का जो कागज पे बना है पहले। यानी पहले ये तय किया गया है कि ये मुल्क जो है ये इसकी वैल्यूज क्या होंगी, और फिर उसकी हिस्ट्री और उसका कल्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई। दिस इज वेरी यूनिक इन नेचर। और जब आप अमेरिकन लिटरेचर को पढ़ते हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अमेरिकन हिस्ट्री को भी साथ पढ़ें। और अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर एक स्ट्रगल है उनकी, कि वो स्ट्रगल ये है कि वो किसी तरह ब्रिटिशर्स से अपनी जान छुड़ाएं, और वो अपने आप को एक नई सोच के साथ और एक नई सिविलाइजेशन बनना चाहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं वर्जीनिया गया अमेरिका के अंदर, और आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, वेरी यंग। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कब्रें ही कब्रें हैं, इतनी कब्रें कि जहां तक नजर दौड़ाऊं वहां कब्रें। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कब्रें कब की हैं? उन्होंने बताया कि ये कब्रें तो 250-300 साल पुरानी है। मैंने कहा ये कब की कब्रें? उन्होंने कहा ये हमारी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कब्रें। और वो मैंने कहा वो क्या, वो कैसे? उन्होंने बताया कि ये वो जगह है, यहाँ ये तोप है जहां पर वो क्योंकि जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अमेरिका को। उन्होंने कहा भाई हम परसूट फॉर हैप्पीनेस के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने आप को डिक्लेयर करना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि हम अपना मुल्क बनाएंगे। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ये किया कि ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ते थे और उन्हें कहते थे कि तुम बताओ कि तुम अमेरिकन हो या ब्रिटिशर्स हो। वो कहते थे कि मैं अमेरिकन हूं। तो वो उसको तोप के साथ बांधते थे और फिर तोप को चला देते ताकि उसका जिस्म उड़ता हवा में जाए और वो बिल्कुल जर्रा हो जाए, खत्म हो जाए। फिर वो उसको पकड़ते थे, पकड़ के उसको वो जो वहां के लोग थे उन्होंने दफनाना शुरू कर दिया। सिर्फ इस पूरे मजमे में जहां पर लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है जानों की, वहां पर सिर्फ चंद लोग जिनकी तादाद 6 थी, 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं हम अमेरिका नहीं, हम अपने आप को ब्रिटिश मानते। बाकी जितने लोग थे वो अमेरिका का नारा लगाते थे और वो पकड़ते थे उनको, तोप के साथ बांधते, तोप वो चलती थी, तोप उन्हें मार देते।
सो दे सेक्रीफाइड देयर लाइफ, और वो अमेरिकन ड्रीम जो उनकी नजरों में था, वो ड्रीम जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ये दिलचस्प बात है, और ये उसके कल्चर और हिस्ट्री के अंदर बात है। वो कैसे, मैं उस पर आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन इट, एंड मे बी आई एम गिविंग ए न्यू एंगल, a new perspective on American literature. Actually, there is if you read American Constitution, you will see that there is a use of word pursuit of happiness. Pursuit of happiness means that you have a right to search for happiness, fight for happiness, and to work hard for happiness. प्रॉब्लम ये आई कि जब अमेरिका ट्रांसफॉर्म हुआ एक एग्रीकल्चर कंट्री से एक इंडस्ट्रियल कंट्री में, और फिर इंडस्ट्रियल कंट्री में ट्रांसफॉर्म हुआ, इतनी तेजी से ट्रांसफॉर्म हुआ, और साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आई, उतनी तेजी से कैपिटलिज्म भी आया। अब जब कैपिटलिज्म आया तो क्या हुआ कि वो जो परसूट फॉर हैप्पीनेस था वो चेंज हो गया परसूट फॉर प्लेजर। Now there is a difference between pleasure and happiness. आप कहेंगे कि सर ये तो एक जैसे वर्ड्स है ना, यानी कहने मतलब है लगते तो एक जैसे, नहीं, they are not same words, they are different. What's the difference between pleasure and happiness? Happiness is a long term phenomenon. ये कैफियत है, ये बहुत लंबी कैफियत है। हैप्पीनेस जो है वो जाती नहीं है, वो आपके दिल में रहती है। और जो प्लेजर है वो क्या है, वो टेम्परेरी है, चला जाता है। जो हैप्पीनेस है वो इंसानों से आती है। प्लेजर जो है वो इंसानों को चीजें बनाने से आती है, यानी कॉमोडिफिकेशन की जाए उनकी। प्लेजर जो है वो क्या है, वो एडिक्शन है। एक दफा आप प्लेजर की तलाश में लगे, वो आपको एडिक्शन आ जाएगी। जितनी भी चीजें प्लेजर पैदा करती हैं वो एडिक्शन पैदा करती है। ऑर्थर मिलर ने जो अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज है, उस पे प्लेजर को और डिजायर को यकजा करती है। वो कहता है कि ये जो डिजायर है लोगों को हासिल करने की, लोगों को काबू करने की, उनके ऊपर कब्जा करने की, उनको उनकी जिंदगियों को अपने असूलों पे चलाने की, that's a false and it's not an American dream. लेकिन प्लेजर जो है वो क्या बन गया, वो अमेरिका का ड्रीम बन गया। अच्छा, अब जो प्री मॉडर्निस्ट, जी प्लीज सवाल पूछें, क्योंकि मैं सर वो जो रेने जेरार्ड की थ्योरी है ट्रायंगुलेशन ऑफ डिजायर, जी वो भी इन वर्क्स के अंदर बड़ी रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल, आप काइंडली उस थ्योरी को थोड़ा सा जरा हाईलाइट करें, जरा ताकि ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से। यस सर, उसमें वो ये कहता है कि कोई भी डिजायर जो है ना वो ओरिजिनल नहीं होती, हर डिजायर जो है वो मीडिएटेड होती है, वो कहीं ना कहीं से मीडिएट होके हम तक पहुंचती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई सेल फोन खरीदता हूं तो उसमें शायद मेरी अपनी ख्वाहिश वो खरीदने की ना हो, बल्कि सोसाइटी जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, मैं उसके मुताबिक वो सेल फोन खरीदने की कोशिश करूंगा कि सोसाइटी मेरे बारे में एक राय कायम करेगी इस सेल फोन के हवाले से। बिल्कुल, तो हर डिजायर जो है ना वो मीडिएटेड होती है और ओरिजिनल डिजायर कोई भी नहीं है। अच्छा, तो फिर वो इसका मतलब ये हुआ कि डिजायर जो है वो प्लेजर में कन्वर्ट है, यानी प्लेजर है। यस सर, इवन अभी जो सर आप जिक्र कर रहे थे उसका स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर का, तो उसमें आप देखेंगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे जो हैं वो उनकी डिजायर्स जो हैं वो मीडिएटेड हैं। इवन के एंड पे जब वो उसके साथ वो रेप करता है तो वो भी एक मीडिएटेड डिजायर होती है। उससे पहले उसको मोहब्बत नहीं होती, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये मिच से शादी कर रही है तो उसका रेप कर देता ताकि ये मिच के साथ शादी ना कर सके। बिल्कुल सही जी सर, बिल्कुल। और ये देखिए अब आपने बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल दी। देखिए, इन अदर वर्ड्स हम डिफरेंट ऑथर्स को लेके देख रहे हैं उस जमाने के। टेनेसी विलियम्स की आपने एग्जांपल दी है, ठीक है ना, और वो भी उसी जमाने का ऑथर है जब ऑर्थर मिलर है। जी और सर वो भी इसमें बड़ा एक अच्छा हो सकता था प्ले राइट, अगर उसको भी हम शामिल कौन
एडवर्ड एल्बी सर। हाँ, एल्बर्ट वर्जीनिया, वो Who's Afraid of Virginia Woolf। और एक एडवर्ड एल्बी की भी एक बहुत अच्छा प्ले है द अमेरिकन ड्रीम। हाँ बिल्कुल सर। ठीक, तो मैं कहना ही चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि कैसे एक क्लोज्ड फिनाइट मेजरेबल कॉज एंड इफेक्ट यूनिवर्स जो है ऑफ 19th सेंचुरी कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, ओपन रिलेविस्टिक चेंजिंग स्ट्रेंज यूनिवर्स के अंदर। क्या कहते हैं आप इसमें? ये चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी अचानक दुनिया 2500 साल बाद करवट ले रही है, ठीक है। और ये जो करवट है, ये करवट जो है ये आपको महसूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर क्या है उसको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखिए, अगर अकलीमिया इधर हो तो मैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? वेलकम टू दी क्लास। जी, देखिए, इस तरह से था कि एक मौजूद पर हमारी बातचीत हो रही थी, तो हम देख रहे थे कि कैसे जो है वो रेस के रिलेशन है जो आज भी अमेरिका में मौजूद है। यानी रेस के ऊपर मैंने आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री भी भेजी है, इंटरव्यू भेजा है जो डॉक्टर आसिर का है, और मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं कि जो इश्यूज हैं, इलीगल इमिग्रेशन है, वो इश्यूज जो हैं वो कितने वायबल हैं अभी भी, और वो कितने जो है वो डिबेटेबल है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल टाइम है लिटरेचर के ऊपर, और लिटरेचर जो है ये इसके शहर से नहीं निकल पाया। यानी द वे जो लिटरेचर आज भी खड़ा है वो भी रिफ्लेक्टिव है ऑफ दैट टाइम। अच्छा, अब आगे, ठीक है, अकलीमिया के बाद मैं चाहता हूं कि बात करने के बाद मैं एक और चीज है, और वो है कि जो पर्सपेक्टिविज्म है, और किस तरह से जो है हमारे जो परसेप्शन है और हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, वो पर्सनलाइज्ड है। और a single story might be told from the perspective of several different people with the assumption that truth is somewhere in the middle. ये जो ट्रूथ की लोकेशन है, लोकेशन ऑफ ट्रूथ इन आर्थर मिलर्स वर्क, लोकेशन ऑफ ट्रूथ इन टेनेसी विलियम्स वर्क, अगर आप वो देखें तो आप देखिए कि वो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने मेरे से पूछा और मैंने रिसर्च की इसके ऊपर कि मॉडर्न उर्दू लिटरेचर में, यानी मॉडर्न उर्दू ड्रामा में और मॉडर्न इंग्लिश ड्रामे में क्या फर्क है। यानी जो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस आया पारसी थिएटर के ऊपर, और सब कॉन्टिनेंट ने जो ड्रामे, मॉडर्न ड्रामे लिखे, उनमें क्या फर्क है। तो उनमें क्या फर्क है, उनमें एक फर्क है कि अगर हम मॉडर्न लिटरेचर को और ड्रामे को देखते हैं वेस्ट के अंदर, तो हम देखते ये हैं कि वहां पर जो है वो कैरेक्टर्स की अहमियत ज्यादा है। कैरेक्टर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स प्लॉट को ड्राइव कर रहे हैं, जबकि हम इधर क्या देख रहे हैं, इधर हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो मॉडर्न उर्दू ड्रामा है उसके अंदर क्या हो रहा है, स्टोरी ड्राइव कर रहे हैं, प्लॉट ड्राइव कर रहे हैं। यानी इन अदर वर्ड्स, इफ यू हैव ए गुड स्टोरी, आपको कैरेक्टर्स की अच्छी जरूरत है ही नहीं, स्टोरी काफी है, फिर उसमें म्यूजिक है, उसके अंदर गाने हैं, उसके अंदर डांस है। जबकि इधर क्या है, इधर ऐसा नहीं है। इधर क्या है, इधर कैरेक्टर्स हैं, और कैरेक्टर क्योंकि वजह कि क्योंकि जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कैरेक्टर साइकोलॉजिकल है। मॉडर्न ड्रामा इंग्लिश का जो है वो क्या है, वो साइकोलॉजिकल उसकी डेवलपमेंट है। और ये दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि एरिस्टोटल के प्रिंसिपल्स को रीअसेस किए जा रहे हैं, उसको नए सिरे से क्रिएट किए जा रहे हैं। जब मैं बात करूंगा ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज का, तो जब मैं उसकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन पे बातचीत होगी, तो वो ये पहलू देखने पड़ेंगे उसके अंदर कि कैसे उसकी प्लॉट को हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है। और अगर मेरे अभी एक साथी हैं मलिक हसन साहब ने मेरी दुखती रग को छेड़ा है
उन्होंने जब टेनेसी विलियम्स का नाम लिया, उसका प्ले स्ट्रीट कार नेम डिजायर का नाम रखा है। मैं तो मॉडर्न ड्रामा पढ़ाता ही वहां से हूँ, एमफिल को, और इट्स सच अ वंडरफुल प्ले। और उस प्ले का की जो वर्ल्ड है, अब वो देखिए तो वो क्या है, वो ट्रांसलूसेंट है, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है कि रोशनी कुछ आती है और कुछ नहीं आती, और उसके ग्रे एरियाज, और कुछ चीजें रोशन होती, कुछ चीजें रोशन नहीं होती। क्योंकि रियलिटी क्या है, रियलिटी कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं। टेनेसी विलियम के प्लेस में तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं, ठीक। और वो टेनेसी विलियम ये कह रहा है कि देखो बासुत, और इसीलिए उसके कैरेक्टर्स को वो बड़े आसानी से डायसेक्ट कर रहा है, डायसेक्ट करके कोशिश कर रहा है कि मैं बताऊं इनके बारे में कि ये कैरेक्टर्स कैसे हैं। नाउ कंसिडर द वे एज इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट रियलिटी। असल बात क्या है कि इंडिविजुअल किस तरह कंस्ट्रक्ट करता है रियलिटी। क्योंकि मैंने पहले आपको बात की क्या है कि परसेप्शन स्ट्रॉन्ग। आप मुझसे पूछेंगे कि आपने ये बात की कि ये जो जितने ड्रामेटिस्ट हैं ये ग्रीक से बड़े मुतासिर, तो अगर ये ग्रीक से मुतासिर हैं तो जो ट्रेजेडी ये सामने ला रहे हैं, वो ट्रेजेडी और जो ग्रीक की ट्रेजेडी है उसमें एक नुमाया फर्क। वो नुमाया फर्क है, वो नुमाया फर्क ये है कि जो ग्रीक की ट्रेजेडी है उसके अंदर दो चीजें। नंबर वन, उसके अंदर गॉड्स है, और नंबर चीज क्या है कि फेट को कंट्रोल कौन कर रहा है, गॉड्स कर रहे हैं। जबकि यहां पे एब्सेंस ऑफ गॉड, यहां पर तो गॉड है ही नहीं। और जब अगर गॉड नहीं है तो एक और चीज भी नहीं है, प्रेयर भी नहीं है। क्योंकि प्रेयर किससे की जाए, तो क्या होगा कि आपको एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए रियलिटी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। गॉड्स आपकी रियलिटी कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, फिर कौन कर रहा है कंस्ट्रक्ट? इंडिविजुअल खुद कर रहा है अपनी रियलिटी को कंस्ट्रक्ट। और इसकी वजह से क्या हो गया कि लैंग्वेज क्या हो गया, लैंग्वेज क्या थिक है विद मल्टीपल मीनिंग्स है, और वो क्या है, वेरिड कनोटेटिव फोर्सेस है। कनोटेटिव फोर्सेस क्या है, यानी कहने मतलब है मीनिंग्स के मुख्तलिफ मीनिंग्स है। लफ्जों के वोकैबुलरी क्या है, वोकैबुलरी स्टेबल नहीं। अच्छा, अब ये जब तमाम चीजें आ जाती हैं तो चीजें क्या हो जाती हैं, वो एक्सपेरिमेंटल इन नेचर होती है। और क्या है कि आर्ट क्या होता है, वो आर्टिफैक्ट हो जाता है रेदर देन रियलिटी। और हम एक और चीज है जिसके ऊपर मेरी पिछली दफा भी बातचीत हुई थी, वो थी एम्बिगुअस एंडिंग, यानी ओपन एंडिंग हो जाती है, जैसे हमने ब्रेख्त के अंदर देखा। So these are the things which we have to trace in Tennessee Williams' work or Arthur Miller's work or Lorca's work. This is very important. अब now आपकी इजाजत के साथ, आप लोगों की इजाजत के साथ, I would like to mark the attendance. अगर मैं अटेंडेंस को मार्क कर सकूं, सबसे पहले उस्मान अली। Yes, sir, I am here. Okay. Aksa. You want to leave? Mohammad Awais Chaudhry. Mohammad Awais Chaudhry, absent. Aklimia. Yes, sir. अकलीमिया, यकीन करें मैंने आपका, अगर मैंने जिस दिन आपकी अच्छा, अवैस चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेजेंट बोल दी है, वो भी प्रेजेंट है। आप यकीन करें अगर मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस कर लिया जिस दिन ना, उस दिन यकीन करें मैंने यूं समझिए कि मैंने अपने आप को मजीद जो है ना लिटरी बना लिया। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, नोबडी प्रोनाउंसेस माय नेम वेरी करेक्टली, एवरीबडी names me Iklimia. Sir, मैंने compromise कर लिया है. My actual name is Aklimia. It's with Aklimia. Now, so from now on, if I keep saying you Aklimia, then it means that I'm improving. Sir, I'll be more fan of you, sir. आपको पता है अब तो मैंने compromise कर ली अपने नाम के साथ. नहीं, आप compromise ना करें.
आप कॉम्प्रोमाइज ना करें क्योंकि इट्स सच अ ब्यूटीफुल नेम और इट्स सच अ लिटरेरी नेम, यू नो, इट मेक्स यू स्टैंड आउट, यू नो, इट मेक्स यू और स्टैंड थैंक यू सर, इसका मीनिंग भी यही है, हुकूमत करने वाली, सुबह वाली सल्तनत। तो इसका मतलब है कि फिर वो जो आपके अंदर जो ना वो अपना एस्किलस का जो प्ले है और स्टिया उसकी बड़ी बड़ी वो अमल दखल है आपके साथ। हाँ सर, ये तो है। थैंक यू सर। फरूख हमीद। यस सर। मोहम्मद इरफान। यस सर। मलिक हसन रजा। यस सर जी, थैंक यू। जो है सिर्फ जो है वो अक्सा जो है बीमार है आज, वो आज नहीं आ सकी, अदरवाइज यू नो एवरीबॉडी इज प्रेजेंट राइट नाउ। अच्छा, इस तरह से है कि लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। मैं 5:10 पे दोबारा से आपसे कनेक्ट होता हूँ, ठीक है जी? लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ओनली ब्रेक, ऑलराइट, एंड I'll get back. Thank you. Thank you. I welcome back you in the class. साथी सब आगे सब हैं? जी सर। जी, अच्छा, इस तरह से है कि मैं जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे से एमफिल में पढ़ा हुआ है जिन लोगों ने, वो ये जानते हैं कि मैं 2 राइटर्स ऐसे हैं, 2 ड्रामेटिस्ट ऐसे हैं जिनमें से एक ब्रेख्त है और एक है टेनेसी विलियम्स। और आमतौर पे ख्याल ये कि मेरा एक इनके साथ कोई रोमांस चल रहा है, इन 2 ड्रामेटिस्ट के साथ, और मैं इनके बगैर जो वो बड़ा ही यानी कहने मतलब ये कि मैं कैसे, यानी इन अदर वर्ड्स इट्स सो इजी फॉर मी टू पिक देम बिकॉज आई लिव विद देम, यू नो, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है जो उनके साथ डेवलप है, एक रोमांस है मेरा इनके साथ। तो मैंने बड़ा सोचा, मैं जब आपकी क्लास पढ़ाने का सोचा, क्योंकि इसको टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये जो टाइटल है ये भी मैंने डेवलप किया इस कोर्स का। तो ज़ाहिर है मैंने सोचा कि मैं जो है वो नई चीज़ करूँ, और नई चीज़ इसलिए करूँ कि मैं स्कोप पढ़ाना चाहता हूँ, पीएचडी का स्कोप हो, और उस स्कोप में नए प्लेयर्स आए, नए आर्टिस्ट हैं, और वो आर्टिस्ट आकर क्या करें कि वो एक नई दुनिया जमाए, वो एक नया रंग जमाए। और जब मेरे वो रंग जमाने का ख्याल आया, तो मेरे लिए सबसे बड़ा नाम जो मुझे नजर आया वो आर्थर मिलर का, क्योंकि आर्थर मिलर जो है वो ग्रो किया है। देखिए, एक बात है, बहुत बड़ी बात है, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग पीएचडी में ग्रो करें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, और इंशाल्लाह ताला आप सब में पोटेंशियल है। आपको मैं पीएचडी समझता हूँ, आप लोगों में ना सिर्फ पोटेंशियल है बल्कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है सबके अंदर। तो मैंने जब सोचा कि मैं आर्थर मिलर को लेकर आऊं, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, उसकी 3 वजूहात थी। पहली वजह ये थी जो एनर्जी है उसके ड्रामे में एक खास एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है वो उसको स्टैग्नेंट नहीं बनाती, डायनामिक ड्रामे है उसके। और नंबर 2 है उसका ओरिजिन, कि देखिए कि वो कहाँ तक देख सकता है, वो अपने एरिया को, अपने डेमोग्राफी से भी निकल सकता है, वो चाहता है निकलना। टेनेसी विलियम निकलना नहीं चाहता। ब्रेख्त के जो प्लेज हैं उसकी एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन इतनी स्ट्रांग है कि वो बाज़ दफ़ा ज़माने में कैद हो जाते। पॉलिटिकल ड्रामे का एक प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो वक्त की कैद में होता, क्योंकि वो वक्त को रिस्पॉन्ड कर रहा होता। सोशल ड्रामा जो है वो इश्यूज में भी आगे भी प्रोलॉन्ग करते हों। मतलब आज भी हम इब्सन के प्लेस पढ़ते हैं, आज भी हम डॉल्स हाउस पढ़ते हैं, तो वो नोरा का जो कैरेक्टर है वो आज भी हमें फैसिनेट कर देता है। वो आज भी हमें ऐसा लगता है जैसे आज ही का लिखा हुआ प्ले। तो जो ब्रेख्त के प्लेस हैं, जो अगस्टो बॉल के प्लेस हैं, उनमें एक प्रॉब्लम ये कि वो पॉलिटिकल डायमेंशन के साथ है, और पॉलिटिकल डायमेंशन के साथ होने से जहां उनको एक बहुत सिग्निफिकेंस हासिल है, वहां पर वो अपनी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कैद है। और मैंने ये लिखा है अपने पीएचडी की थीसिस में कि इसीलिए अडेप्टेशन की जरूरत है। अडेप्टेशन की जरूरत इसलिए ज्यादा ब्रेख्त के प्लेस को है कि वो उसको नई एनर्जी देने की जरूरत है, एनर्जाइज करने की जरूरत है, उसको री-इन्वेंट करने की जरूरत है, उन्हें री-कॉन्टेक्चुअलाइज करने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो आर्थर मिलर है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, और ये मैंने पीएचडी के लिए उसको चूज किया, जब लॉर्का को मैंने पीएचडी के लिए चूज किया तो मैंने देखा कि उनकी डायमेंशन को हम ग्रो कर सकते हैं, वो ग्रो किए अपने। वैसे तो हर आर्टिस्ट जो है उसके अंदर एक खूबी होनी चाहिए कि वो ग्रो करे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि जैसे आर्थर मेरा चैंपियन है इस चीज का, ग्रोथ का। कैसे? मैं पहली चीज पिक्चर आपके सामने ला जाता हूं और इससे मैं साबित कर जाता हूं कि वो ग्रो करके कैसे। ये देखिए, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, ये रोमांटिक जरूर है, इसमें रोमांस है, लेकिन अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज ये भी है कि ये जो बस्तियां आबाद हैं इधर, इनका व्यू वो कहां से ले रहा है? फ्रॉम द ब्रिज ले रहा है। और ये जो लोग हैं ये मुख्तलिफ है उससे। ये इटालियन कम्युनिटी है, ये डाउन ट्रॉडन है, ये पूरेस्ट ऑफ द पुअर है, ये मार्जिनलाइज्ड है, ये डिसइल्यूजन्ड है, ये पेसिमिस्टिक है, ये डिसएडवांटेज्ड है, ये ह्यूमिलेटेड है। यानी एक ऐसी बस्ती वो उठा रहा है, जो बस्ती जो है वो क्या है, जो कि वो बस्ती उससे मुख्तलिफ है। ठीक है साथियों, मैंने 90s और बिल्कुल 2000 तक मैंने अमेरिका एक्सप्लोर किया, और अमेरिका के अंदर इटालियंस जो हैं उनकी एक हिस्ट्री है, और उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ क्लब किया जाता है। आज भी जो अवैस की तो मेरे ख्याल में नहीं, किसी का कोई म्यूट कर सकता है? हाँ जी। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि वो आज भी जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी जो है वो क्योंकि उसको एक क्रिमिनल आइडेंटिटी दी गई, और वो आइडेंटिटी जो है वो अनफेयर भी है। आप अनटचेबल मूवी देखें, आप गॉड फादर देखें, आपको पता चलेगा कि उसको ग्लैमराइज किया गया है उस कम्युनिटी को, लेकिन उसके अंदर क्रिमिनल एलिमेंट को हाईलाइट किया गया, जबकि वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग भी है लोग हैं। उनके खाने जो हैं, इटालियन फूड जो है वो दुनिया में पॉपुलर है। उनका पिज्जा जो है वो इज मोर पॉपुलर देन इन इटली। I mean, it's more popular in America than in Italy. So what I'm saying is कि they contribute a lot. अब ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज से वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है इसको, ठीक है। और जिस कम्युनिटी को देख रहा है, वो कम्युनिटी जो है, आर्थर मिलर उसको सामने लाना चाहता है। और वो कम्युनिटी क्या है? वो कम्युनिटी की कुछ हकीकतें, उन हकीकतों को मैं लिस्ट कर रहा हूं, जरा देखिएगा। और मैं अक्लीमिया, क्योंकि आपके आने से पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि मैंने जो टेक्स्ट है अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, जो नेक्स्ट लेक्चर है, उसके लिए मैंने एक खास डिवीजन की है कि ताकि डिस्कशन में मजा आए। तो उसके अंदर जो डिवीजन हमने की है, उस डिवीजन का जो शुरू है अक्लीमिया, वो आपसे really, जी। और आपके हवाले जो मैंने चीजें की हैं, वो है जनरल प्लॉट है, स्ट्रक्चर है, राइट सर, लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, राइट सर। सर इन द नेक्स्ट क्लास, जी नेक्स्ट क्लास में जी। और दिलचस्प बात ये कि मैं आज आपको एक बात बताऊं कि जब ये चीजें मैं बना रहा था, तो मेरे ज़हन में सबसे पहले आप इसलिए आई कि आप में ये एबिलिटी है कि आप चीज़ों को काफ़ी गौर से पढ़ती हैं। तो अक्लीमिया, ये जो मैंने आपको ना एक स्टूडेंट हैंडबुक दी, ठीक है, और वो हैंडबुक मैंने पूरी उसको मैंने बकायदा जो है ना वो अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज को, इसकी पूरा आपको ना सिर्फ हैंडआउट्स दिए हैं, बल्कि मैंने इसकी रीडिंग मटेरियल में एक हैंडबुक दी है जो आपके लिए, और उसके अंदर ये चीजें आपको मिलेंगी। राइट सर, ठीक है सर। आपने प्लॉट का है, आपने सोशल बैकग्राउंड का है सर। आई एम सॉरी, सेकंड क्या चीज बोली थी आपने? सेकंड स्ट्रक्चर, जी ठीक है।
और तीसरी चीज जो है वो लिटरेरी हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। जी ठीक है सर। और Noted, sir. ये आप खुद भी रिसर्च कर सकती हैं। देखिए जो रिसोर्सेज मैं आपको दे रहा हूँ, मैं अक्लीमिया मैंने जो रिसोर्सेज आपको, चाहे वो आप अपनी मेरी पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन के ऊपर है और या वो मेरे हैंड आउट की सूरत में या रीडिंग मटेरियल, वो सब आपके हैं, तो आप वो सब यूज कर सकते हैं। यानी आप मेरा कोई मटेरियल भी उठाएं, उसे जैसे चाहे इस्तेमाल करें, ठीक है? राइट सर। अब मिसाल के तौर पे अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रही हैं तो आप उसमें ये चीजों को ऐड कर सकती हैं, ठीक है? क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब हम उस तरह जाएं जिस तरह से पीएचडी के अंदर पढ़ाई होती है, ठीक है ना जी? Got it, sir. सर थोड़ा सा इसको स्पॉटलाइट, आई एम रियली सॉरी, इसको प्रिसाइज कर दीजिए। यू आर एक्सपेक्टिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एनी वर्ड डॉक्यूमेंट और जस्ट ओरल discussion about it? To be very honest with you, I leave it up to you. It's up to you. आप वीडियोस दिखाना चाहती हैं हमें, हमारे पास शेयर का है, ठीक है ना? आप शेयर कर सकती हैं। आप कहती हैं कि नहीं मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करनी है, आप वो करें। आप कहती हैं कि मैं दोनों का मिक्स कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। आप कहती हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं दिखाना, मैंने सिर्फ बोलना है क्योंकि मेरी आवाज ही काफी है, तो नो प्रॉब्लम नहीं ना, यू आर मोर देन वेलकम, आप वो भी कर सकती हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए ये और ये ग्रेडेड है ये ना। गॉट इट सर, इंशाल्लाह सर, आई ट्राई माय बेस्ट सर। अच्छा, अब हम आ रहे हैं कि इटालियन इमिग्रेशन के ऊपर। इटालियन इमिग्रेशन को स्टडी करना इसलिए जरूरी है कि मैं समझता हूं कि इस प्ले के अंदर जो है, इस प्ले का जो मरकजी किरदार है वो इमिग्रेंट है, और वो इलीगल इमिग्रेंट्स। और इलीगल इमिग्रेंट्स की जो वॉइस है वो हमेशा बहुत महदूद रही है, बड़ी कुचली हुई आवाज, ठीक है? एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड विद दिस वॉइस। और ये प्ले जो है वो वॉइस भी सामने ला रहा है, वो ऑनर भी सामने ला रहा है उनका कि उनका भी कोई एक ऑनर है, ठीक है? एंड दे आर ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर्स। तो इटालियन इमिग्रेशन जो है वो 1876 से स्टार्ट होकर 1924 पे over 4.5 million Italian arrived in USA out of population of only 14 million in Italy. यानी आप ये देखिए कि अराउंड 30+% जो है वो पॉपुलेशन क्या हुई, वो माइग्रेट कर गई। और वो क्यों माइग्रेट की? बिकॉज दे आर अनेबल टू अर्न अ लिविंग लाइवलीहुड इन देयर होम कंट्री, दे बिकम माइग्रेटरी लेबर्स। अब नाउ लिसन टू मी इन वन वे। इमिग्रेंट जो माइग्रेशन लिटरेचर है, माइग्रेशन लिटरेचर पीएचडी का एक बहुत बड़ा थीम है, बहुत काम होती। यानी अगर आप फर्ज करें, अगर आप अमेरिका पढ़ते या ब्रिटिश इंग्लैंड में पढ़ते, तो सबसे पहले वो आपको कहते हैं कि आप माइग्रेंट लिटरेचर से लेकर आए काम, क्योंकि यू आर साउथ एशियन, और साउथ एशियन की एक बहुत बड़ी टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल है, जो कि उनकी स्टोरीज है, ठीक है? एक गुड मुस्लिम से लेके आप स्टार्ट ले लें, मैप्स फॉर द लॉस्ट लवर्स, आप यानी यू ब्लैक डायरी, आई मीन यू नेम इट एंड यू कीप ऑन गोइंग, यू नो, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इमिग्रेंट लिटरेचर। नाउ ये जो लिटरेचर है उसको प्रोड्यूस करने वाले क्या खुद भी इमिग्रेंट है, यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है? वो क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि ये लोग हैं, ये आ गए हैं, और ये लोग क्या है, ये लेबर है, चीप लेबर है। और जो चीप लेबर होती है वो क्या होती है? वो एक्सप्लॉइट होती है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो अमेरिकन इंडस्ट्री है, मैं मलेशिया में था, तो मेरा जो प्ले है वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर है। तो मैं वहां पे था, तो हर वीकेंड के ऊपर ना मेरी मुलाकात हो जाती थी उन लोगों के साथ ट्रेन के में जो इलीगल थे वहां, पाकिस्तानी। और वहां पर हजारों पाकिस्तानी इलीगल है, हजारों, अगर मैं कहूँ लाखों नहीं है तो हजारों, तो मतलब मैं कम से कम 80 से 90 हजार पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट है वहां, जो वहां पर इलीगली रहता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और उसकी स्टोरीज है। और मैंने उनकी स्टोरीज को हर वीकेंड पे रिकॉर्ड किया। मेरे पास एक रिकॉर्डर था H1N, ये एक जूम के कंपनी है, उसका रिकॉर्डर था, छोटा सा रिकॉर्डर, ऐसा कि आप वो पता ना चले किसी को कि वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं उनके साथ बैठता, उनके साथ गपशप लगाता, उनके साथ खाना खाता, उनकी कहानियां सुनता।
और उनकी कहानियों से फिर मैंने मुश्तबा की कहानी निकाली, एक इलीगल इमिग्रेंट की कहानी। और वो इलीगल इमिग्रेंट जो था वो क्या था कि वो जहां जाता अपना नाम बदल लेता, क्योंकि उसे नाम बदलना था, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी अगर एक ऐसी कम्युनिटी में चला जहां पे हिंदू ज्यादा है तो वो हिंदू हो जाता, अगर जहां पे सिख ज्यादा वहां पर सिख हो जाता, जहां मुसलमान ज्यादा वहां मुसलमान हो जाता। Now he has to transform his identities because he's an illegal immigrant, and that's a big story. And I recorded their story. Every weekend I recorded their stories and come across with their story. Now look, the same thing happening in this play. The story of illegal immigrant, that they have honor too, they have respect too, they want to live their life, and they are in a new country, and they are meeting a different kind of people. Same race है उनकी हिस्ट्री सेम है, लेकिन क्या वो एक नई जनरेशन के साथ आ गए, नई जनरेशन ऑफ इटालियन के साथ आ गए, और जिनके साथ रह रहे हैं उनकी सोच फर्क है. This is very interesting. This is very mind blowing when you read this play, because what you are seeing is you're seeing two different kind of people from the same origin, two different mindset, two different perspective. And secondly, what's going on is that with the inclusion of desire, all of a sudden their perspective are changed, their thinking are changed. Now they are driven by desire, and from where Arthur Miller got this idea? He got this idea from Greeks. कि desire चलाती है, desire जो है वो pleasure है, वो पागल कर देता है. हेलन के साथ देखें क्या हुआ. हेलन भाग गई थी, elopement है. हेलन वहां से भागती है. हेलन की वजह से क्या होता है? हेलन की वजह से वो पूरा इलाका एक रूलर से महरूम हो जाता है. एग्मोनॉन जो है वो क्या लालची है, वो एम्बिशियस है. उसे मौका मिल गया कि यार मैं इसी बहाने ट्रोजन वॉर कर सकता हूं, मैं इसी बहाने ट्रॉय को फतह कर सकता हूं, मैं निकल सकता हूं इधर से. आई कैन बी ए मोर ग्रैंड लीडर. and what he does, he escaped from his country. वो अपनी आर्मी जमा करता है, लोगों को जमा करता है, और क्या करता है, वहां से निकल जाता है, और वो मुल्क तनहा रह जाता है, और वो मुल्क जो है वो अक्लीमिया के हाथ में लग जाता है. ठीक है ना, क्योंकि अक्लीमिया का मतलब क्या, हुकूमत करने वाली. और वहां पे क्लेमेस्ट्रा आया था, और क्लेमेस्ट्रा ने वहां पे हुकूमत करती है, और वो फिर 10 साल तक वो एक मुल्क जो है वो एक अनस्टेबल मुल्क है, क्योंकि वजह उसको पता नहीं कि वो उसकी असल हुकूमत कौन करे. क्लेमेस्ट्रा एक काबिल हुक्मरान है, लेकिन क्या है कि वो भी लस्टफुल है, वो भी डिजायरफुल है, प्लेजर आ जाता है. अपने मुल्क में लोग एक्साइल्ड हैं. तो ये व्हाट्स गोइंग ऑन इज दैट वी आर डिस्कसिंग द इमिग्रेशन इशू. The majority of Italian immigrants were men in their teens and 20s who planned to work, save money, and eventually return home to Italy. ये ख्वाब है. ख्वाब क्या कि इटली वापस चले जाएंगे. ख्वाब है कि यहाँ पे अर्न करेंगे. ये इकोनॉमिकल ग्राउंड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन ड्रीम ये है कि हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं. It's a land of opportunity. We can earn money from here, and then what we'll do is after earning the money, we'll go back. This is not a permanent land for us, but there are two different kind of views. One view is that it's not our permanent heaven. We just come over here, earn money, and then we will leave. And the second is that no, we'll marry here and we will die here. This is another perspective. Now, 20 to 30% of these Italian immigrants return to Italy permanently. तो 70% लोग क्या हुआ, 80 to 80% लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसी मुल्क को अपना क्या बनाया कि हमने इधर ही रहना है. ठीक है. और एक स्टोरी है उसकी इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. एक इमिग्रेशन है, माइग्रेशन, उसकी रीजन इकोनॉमिकल है. और वो वजह क्या है? वजह ये है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द इटालियन इकोनॉमी वाज स्लो टू ग्रो.
स्पेशली इन साउथ सिसिली, यहां से सारे क्रिमिनल आते थे, यहां से गॉड फादर बनी, ठीक है, जहां से दी अनटचेबल फिल्म की स्टोरी जन्म लेती, ठीक। अब वो वहां पर क्या है, with no jobs and no prospects, it was not surprising that many people directed to try their luck in rich America. अच्छा, उनके जो कजन्स हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको एक कहानी सुनाते, एक कहानी से ये सुनाते हैं, जो हमारे कजन्स और हमारे रिलेटिव्स हमें कहानी सुनाते हैं बाहर के मुल्कों से, और वो कहते हैं यार पता क्या कि अमेरिका में तो दरख्तों पे पैसे लगते हैं यार, वहां तो पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, वहां तो टैक्सी चलाओ तो बस बंदा अमीर से अमीर हो जाता है, बड़े बड़े घर बना लेते ना। वो रियलिटी कितनी है, कितनी रियलिटी नहीं। हम देखिए इधर मैंने थीम उठाया है, जब मैं थीम उठा रहा था तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे ये डिस्कस करूं, आई वुड लाइक टू डिबेट दिस इशू, कि ये भी एक ज्यादती है कि आप चंद लोगों को एक ख्वाब बेच रहे हैं, और वो ख्वाब, और हम भी ख्वाब में पूरा हिस्सा डालें, हमारी स्टेट डालती है हिस्सा, कि हम लोगों को कहते हैं यार आप बाहर चले जाओ, बाहर से हमें अर्न करके पैसे ला दो, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू बढ़ा दो, हमें आपके पैसों की जरूरत है, आपके पैसों के बगैर हम मुल्क नहीं चल सकते। पाकिस्तान के पास हर मंथ में $1 बिलियन जो है वो बाहर से आता है, वो कमा के वो बेचते। मैंने उनको देखा है, मैंने उनकी स्टोरी सुनी है, मैंने आपको जैसे बताया कि इट्स नॉट, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन देयर स्टोरीज। मैटर ऑफ फैक्ट, आई माय लिटरेरी राइटिंग career is depend upon them, because I believe that it's my duty to represent them. It's my duty to represent them, the voice of marginalized people, the voice which is not heard anywhere in our literary text. Illegal लोगों पर हमारी कोई गेम नहीं, हम उनको कोई समझने की कोशिश नहीं कर, वो पूरेस्ट ऑफ द पुअर है, और वो वापस भी नहीं आते क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, सूद पे कर्जा लिया हुआ, वापस नहीं आ सकते, वापसी के रास्ते बंद है उनके, ठीक। और लोग वापस आएंगे, लोग पूछेंगे यार तो तुम क्यों वापस आ गए, तुम्हें तो मौका मिला था ये अपनी जिंदगी बनाने, तुम जिंदगी छोड़कर आ गए। So there was a thriving trade in legal immigration, encouraged by dockyard owners. कैपिटलिज्म जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को पैदा करती है, कैपिटलिज्म जड़ है इसकी, क्योंकि वजह इसकी है कि वो उन बिजनेसेस को कहता है कि सस्ती लेबर पकड़ लो। इलीगल इमिग्रेंट कहाँ भागेगा, वो तो एक कबूतर की तरह जो काबू आ गया, कबूतर के माने थे। मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि जो इलीगल इमिग्रेंट होता है, जो कारोबार वाले पकड़ के लाते हैं, उनका नाम क्या है, उसका नाम है रेड पिजन, लाल कबूतर। यानी इलीगल इमिग्रेंट को जो लेकर आते हैं उसको लाल कबूतर कहते हैं, रेड पिजन कहते हैं। जैसे पिजन होता है वो फ्लाई करके पहुंचता है, उसी तरह ये फ्लाई करके पहुंचते हैं। इनकी खास ट्रेड है, इनके खास बिजनेसेस के अंदर खपाए जाते हैं, खास तौर पे सी साइड की तरफ, ताकि ना कोई इधर कोई आए, ये उधर ही काम करे, खामोशी से डॉक यार्ड में इनको छुपाए दे दिया जाए। Thinking about the news, Daddy leaves it on all day through. I've been thinking about the wars, and to be honest I can't take it anymore. I hear you every day, the awful words you say, but hate can't be the face of the American dream. I've been thinking about my life, and how one day I want to be a mother and a wife. I've been scared of that thought too. In a world of struggle, what are we gonna do?